અમારે જે બોલીએ તો ભારત માતા જ બોલવું પડે. લ્યો इंडिया माता की जय बोल हाउ है कि बोलो इंडिया माता की मैचिंग नहीं था. भारत माता बोलाए. अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपना सनातन हिंदू संस्कृति ની અંદર આપણે આપણી ભૂમિને આપણી માં કહી છે. ધરતી માં. આપણા ધર્મની અંદર આપણે પૃથ્વીને માં કહીએ છીએ એટલે ભારત માતા. બાકી ધરતીને માં કહેવાની સિસ્ટમ દુનિયાના એકેય દેશમાં નથી. તમે કે અમેરિકામાં હાંભળ્યું, ઇંગ્લેન્ડમાં હાંભળ્યું, જાપાનમાં, જર્મનમાં, આફ્રિકામાં એ ભારતને લાગુ પડે છે. ભારત માતા. આપણે અહીંયા ભૂમિને માં કહીએ છીએ. ધરતી આપણી માં છે. डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. वो भारत देश वो भारत देश डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा. भारत देश अहिंसा और धर्म का लगता है पद पद तेरा. ओ भारत देश ओ भारत सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पद पद तेरा. भारत कृष्णलाल की जय. जय नवादोनी हाली तो જાય છે. હું કહેવા એ માંગતો હતો કે આપણો દેશ છે એટલે નથી કહેતો, આપણી સંસ્કૃતિ છે એટલે નથી કહેતો, પણ જગતની અંદર સનાતન સંસ્કૃતિ જેવી અદ્વિતીય અનુપમ અલૌકિક અદ્ભુત સંસ્કૃતિ દુનિયામાં ક્યાંય નથી. આ એકદમ સપ્રમાણ છે. એના જેવી વાત નથી કે આપણી ટોળી જિંદાબાદ ને બીજાની ટોળી મુર્દાબાદ, એવી વાત નથી. અદ્ભુત સંસ્કૃતિ છે આપણી. આવી સંસ્કૃતિ દુનિયામાં કોઈ પાસે છે જ નહીં. તો આપણે એવી બુદ્ધિ આપણી ભ્રમિત કરી, આપણે આપણી બુદ્ધિ એવી પછાત વસ્તુ વિચારવામાં આપણે જાહેરાતો કરી પાછળ નાખી દીધા. દુનિયા ભારત સંસ્કૃતિ જેવી ક્યાંય સંસ્કૃતિ નથી. તો આપણે આપણા પૂર્વજોના ઋણી છીએ. આપણા ઋષિઓ આપણા દેશને આઝાદ કરવામાં જેને પ્રાણોના બલિદાન આપ્યા છે એવા
અનેક શહીદો, અનેક અગ્ર પુરુષો આપણે એના ઋણી છે. આ પિતૃ પક્ષમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ દેશને આઝાદ કરવામાં જેને પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી છે અથવા તો જેને તન્મંતરથી સહયોગ આપ્યો છે પરમાત્મા, એ તમામ આ દેશના રાષ્ટ્રભક્તોનું ભગવાન કલ્યાણ કરે. આ બલિદાન એને આપ્યું, જલસો આપણે થઈ ગયો તો એના પણ આપણે ઋણી છે. એટલે તો કોઈએ કહ્યું ને કે 5 જણા આપણે ઋણી છીએ. એક જનેતા, જનક, જનેતા, એક જનતા, જનાર્દન, 5 જણા આપણે ઋણી છીએ. એક માં, એક પિતા, મા બાપ. માતા પિતા, ભૂમિ, જે ભૂમિમાં આપણો જન્મ થાય એ ભૂમિના આપણે ઋણી છે. જનતા એટલે સમાજ, આ સમાજના ઋણી છે. પૈસા વ્યવસ્થા માટે છે, પૈસા છે ને વ્યવસ્થા માટે છે, પણ સાધન વિના તમારું કામ ન થાય. લ્યો, આપણે કથા કરવા આવવું હોય તો આપણે બધું જોઈએ, રૂમ જોઈ, હોલ જોઈ, સાઉન્ડ જોઈ, જમવા માટેનો હોલ જોઈ, દૂધ જોઈ, દહીં જોઈ, છાશ જોઈ, રસોઈયા જોઈ, બહાર નીકળીએ તો દર્શન કરવા જવું હોય તો રિક્ષા જોઈ, બસમાં બેસીને જઈએ તો બસ જોઈએ, રેલવેમાં બેસીએ તો રેલવે જોઈએ. આ એ બધું સંચાલન કોણ કરે છે? સમાજ, જગત. કોઈ રિક્ષા ચલાવે, કોઈ બસ ચલાવે, કોઈ ગાડી ચલાવે, આ બધું તંત્ર છે. સૌ એકબીજાના આપણે ઋણી છીએ. જનતા, માતા પિતા, જનતા, જનાર્દન એટલે ભગવાન. અને એક જ હજી ભૂલાય છે. એટલે જ એટલે જ ઉપરથી નામ પણ યાદ નથી આવતું. તમને કહું છું એટલે કદાચ તમને યાદ આવી જાય. જન્મભૂમિમાં આવી ગયું. જમીન એટલે જન્મભૂમિ. જનક, જનની, જનતા, જનાર્દન અને જનતા આવી ગઈ, જનાર્દન આવી ગયા. હે એટલે એમ ઘણા છે, પણ આ ક્રમમાં જે ભૂલાય છે ને એમાં ઈ નથી. તમે કયો છો? હે હે શું જાગીર નો આવે, દાનવીર નો આવે. જન્મભૂમિ એટલે શું થયું? તો મને કયો. જન્મભૂમિ એટલે એમાં બધું આવી ગયું, બરોબર. જનતા એટલે સમાજ, જનાર્દન એટલે ભગવાન. થઈ ગયા. ગુણો, માતા, પિતા, જનતા, જનાર્દન અને જન્મભૂમિ થઈ ગયા. હે જળ, હા ના જળ પણ થઈ ગયા. બોલો, નજર મને કોઈ ધ્યાનમાં નહોતા આવતા. કોને કોની પરીક્ષા લીધી ખબર જ ન પડી. તમે મારી લીધી, મેં તમારી લીધી, આપણા બેયની લેવાઈ ગઈ. 5 જણા તો થઈ ગયા. જનની, જનક, જનતા, જનાર્દન અને જન્મભૂમિ થઈ ગયા.
બાકી જળ નો આવે, જાગીર નો આવે, શિક્ષક ગુરુ પણ નો આવે. એટલે ઓમ જોવા જઈએ તો ગુરુ આવે, પણ આ જે પંક્તિ છે, આ જે વિચાર જેને આપ્યો છે એને ઈ જમણા એને નથી સમાવ્યા. ગુરુનું પણ એક ઋણ છે. તો આ પાંચ જેના આપણે ઋણી છીએ. करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है. नाव कभी भी बिना पतवार के चल नहीं सकती, क्योंकि वो जब पतवार धक्का देता है तब नाव चलती है. लेकिन हमारे जीवन की नाव में कोई पतवार नहीं, लेकिन फिर भी हमारी नाव चल रही है. चला कौन रहा है? क्योंकि प्रभु चल रहा है. पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, प्रभु आपकी कृपा से मंजिल भी मिल रही है. करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है. करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है. बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. भागवत भगवान की जय. द्वारिकाधीश की जय. कथा आइए, वैसे तो समय हमको सावधान कर रहा है, लेकिन थोड़ा सत्संग, थोड़ा भगवत कीर्तन करके फिर कथा को विराम देंगे. और बार बार ये भी आगे आई थी कि पहले दिन जो कीर्तन सुनाया था वो कीर्तन सुनना है, गुरबानी है. अब करो दया मेरे साईं, अब करो कृपा मेरे साईं, अब करो दया मेरे साईं, अब करो कृपा मेरे साईं, अब करो दया
कुर्बानी है। गुरु नानक साहेब के शब्द है, इसी को ही संत वाणी कहते हैं। तो संत के हृदय से निकलती है वही संत वाणी। आज ये परम आनंद और प्रसन्नता की बात है कि हमारी सभा में भरत भाई के निमंत्रण से सिंह साहेब और गौरव साहेब उपस्थित हुए हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। जब अपना कार्यकाल हो, सत्ता हाथ में हो, तब कोई अच्छा काम करे, करने का सौभाग्य मिले, यही भगवान की कृपा का ही एक रूप है। और हमारे धर्म में तो यही कहा है कि अपना हर कोई काम ईमानदारी से करे, प्रामाणिकता से करे, यही धर्म है, यही नैतिकता है। धर्म का मतलब क्या है? यही धर्म है जो हमारी जवाबदारी है, जो हमारी फर्ज है, उनका हम नैतिकता से, प्रामाणिकता से पालन करें। तो बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता है। बाकी तो આપણી કથા ગુજરાતીમાં ચાલે છે, હું થોડું ચાઇની હિન્દીમાં એટલે બોલું છું। તમને હિન્દી સમજાય પણ કદાચ એમની હિન્દીમાં गुजराती अपनी भाषा कदाच एमने न समझाए, इसलिए स्वाभाविक है। भाषा का फर्क रहता है। हमारी गुजराती, मुझे हिंदी वाले बोल रहे थे कि हे की जगह छे लगा दो, गुजराती हो गया, छे की जगह हे लगा दो, हिंदी हो गया। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी अपने अपने प्रांत की जो जन्मभूमि की जो भाषा है, उसी भाषा को ही मातृभाषा बोलते हैं। उस भूमि के आसपास की जो भी सब्जी है, अनाज है, जमीन में जो भी, उस भूमि में जो भी हमको मिलता है, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी चीज वो है, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी मिट्टी के आसपास, उसी मिट्टी के प्रभाव से बना है। तो हमारे शरीर के लिए भी फल, फूल, सब्जी, अनाज सब उसी भूमि के ही सबसे अच्छे हैं। ये उस संत का मत था। बराबर हो ना हो पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छी बात लगी। तो और जिस भूमि में हमारा जन्म होता है, बस उसी की भाषा ही हमारी मातृभाषा। तो वैसे तो ये पवित्र तीर्थ भूमि सुखताल, ये कल्याण देव जी महाराज इधर आए और ये मेरे ख्याल से सब बता रहे थे, यहाँ तो पूरा जंगल था। आज से 100 साल पहले महाराज जी पधारे, इधर तपस्या की और इस भूमि को महातीर्थधाम बनाया। और उस संत का ये अभिप्राय था कि ये भूमि, ये सुखदेव जी की तीर्थ भूमि है, ये सुखदेव जी की उपासना भूमि है। इस भूमि में सुखदेव जी ने तप किया, साधना की, उपासना की और भगवान की कथा भी इसी भूमि में कही है। इसलिए आज भी ये भूमि सुखताल। वैसे तो इस प्रांत के सब लोग इस भूमि को शुक्रताल बताते हैं। वैसे वैदिक नाम तो सुखताल है, क्योंकि सुखदेव जी के नाम से है। फिर समयांतर ऐसा हो जाता है, अपभ्रंश हो जाता है, सुखताल के बजाय शुक्रताल। लेकिन ये सुखदेव जी की तपोभूमि है, तो इतने दिनों से हम भी
यहाँ पे भगवान की कथा का आनंद कर रहे हैं और भगवान की विविध लीलाएं और लीलाओं का चरित्र वही भागवत का हृदय है। जैसे हमारे शरीर में, हमारा शरीर का वैसे तो हर अंग महत्व का है। बताइए, आंख हो, कान हो, मस्तक हो, हाथ हो, पेट हो, छाती, पग, हर अंग महत्व का है। लेकिन ये पूरे अंग में सबसे महत्व का कोई अंग है तो वो अंग है हमारा हृदय। मान लो कभी ऐसा हो जाए, एक हाथ न हो, एक पैर न हो तो भी चलेगा। जब तक हृदय चलता है, आंख नहीं है तो भी चलेगा, कान नहीं है तो भी चलेगा, पैर नहीं, पांव नहीं है तो भी चलेगा, हाथ नहीं है तो भी चलेगा। मान लो कभी ऐसा हो गया सब बराबर है और 25-30 साल की उम्र है, कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन मान लो कि ये हृदय चलना बंद हो गया, मान लो कि ये हृदय चलना बंद हो गया तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। इसी तरह हमारे हृदय में भी, हमारे शरीर में भी महत्व का अंग हमारा हृदय है। और भगवान का निवास भी हृदय में ही तो है। प्रेम कहाँ रहता है? हृदय में। भाव कहाँ रहता है? हृदय में। भगवान कहाँ रहता है? हृदय में। तो हाँ, मस्तिष्क में जो रहती है वो बुद्धि है, मस्तिष्क में जो रहती है वो बुद्धि है, चतुराई है, समझदारी है। लेकिन हृदय, हृदय तो प्रेम का मंदिर है, हृदय तो भाव का मंदिर है। हृदय और प्रेम ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। बोलेंगे तो भी यही बोलेंगे, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तो भागवत का, वैसे भागवत के 12 स्कंद है, ये 10वां चल रहा है और भगवान विराजते हैं उस स्कंद को 10वां स्कंद बोलते, माने वो भागवत का हृदय है। अभी हम कथा की यात्रा में हृदय में पहुंचे हैं, यात्रा करते करते हृदय में पहुंचे, तो हृदय में भगवान का निवास। यदि चाह हमारे अंदर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, कहीं न कहीं रे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, कहीं न कहीं मनमोहन काश
काशी मथुरा वृंदावन में यावतपुरी की गलियन में गंगा यमुना सरयू तट पर गंगा यमुना सरयू तट पर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। क्यों ढूंढ लेंगे? यदि चाह हमारे अंदर। भगवान को अगर पाने की चाह है, भगवान को मिलने की चाह है, तो कहीं भी मिलेंगे। तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे एक कहीं न कहीं मनमोहते। सब भक्त तुम्ही को तेरे नाम की माला फेरेंगे जब आप खुद शर्माओगे, तो जब आप खुद शर्माओगे तो हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, हमें दर्शन दोगे कहीं न कहीं मनमोहन मूर्ते मनमोहन मूर्ते। तो भगवान की विविध लीलाओं में कृष्ण लीला 10वें स्कंद में पुत्रा का आगमन, भानु कृष्ण ने रमाडवा दिखावा कुछ और है, भीतर कुछ और है। ऊपर जो है मां बन के आई है, मैं मां हूं, कन्हैया को अपना स्नेह दूंगी, प्रेम दूंगी, लेकिन भीतर तो हलाहल विष भरा है, भीतर तो हलाहल जेल भरा है। भगवान को ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आते जो भीतर से मन मेला है, ऊपर सब कुछ अच्छा है लेकिन भीतर से कपट है। इसलिए तो भगवान ने भी बोला है निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन ए सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो। पुतना के मन में पाप है, दिखावा प्रेम का है। भगवान को अपनी गोद में लेकर के बता रही है मैं प्रेम देने आई हूं लेकिन मारने के लिए आई। अपनी गोद में लेकर के जैसे मां अपने बच्चे को परिपान करवाती है, ऐसे भगवान को हृदय से लगाया, लेकिन दूध नहीं था, हृदय में जहर लगा के आई थी। भगवान भी कैसे हैं, सोचा चलो कोई बात नहीं,
रोज दूध पीते हैं, आज जहर पिएंगे। कोई बात नहीं, आप देखते हैं तुम्हारा जहर बड़ा है या कन्हैया बड़ा है। भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है? 6 दिन के है कन्हैया, मात्र 6 दिन। छठा दिन है, छठे दिन पूतना आ गई। भगवान ने पूतना का सारा जहर पी लिया। फिर तो उसके प्राण पीने लगे, उसकी शक्ति, तेज, ओजस। पूतना की आंखों में अंधेरा छा गया। ये क्या होगा? अब तक तो जिस बालक को मैं मारती थी वो बालक की आंखों में अंधेरा आता था, वो बालक एकदम बचने के लिए चटपटाता था। आज वो सब मुझे हो रहा है। ये उल्टा क्यों हो रहा है? भगवान के અત્યારે સુધી તે કર્યું એ બધું કારોબાર છે। उतना ने अभी तक बहुत निर्दोष बालकों को मारा है, लेकिन आज वही दशा, वही परिस्थिति पूतना। भगवान बताना चाहते हैं, भगवान कहते हैं किसी को तड़पा तड़पा करके मारने से क्या होता है वो अनुभव भी जरा कर ले। तू भी तो तड़प ले, पता चले। एकदम बचने के लिए चीस एकदम चिल्ला रही है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। कन्हैया बोले तूने किसी को छोड़ा था? तूने किसी के ऊपर दया की थी जो मैं तेरे ऊपर करूंगा? एकदम कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ी है। ये मायावी है। इसका शरीर जो है 6 गांव माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का उनका शरीर है। आप हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा शरीर है। 18 किलोमीटर की तो उसकी काया। कन्हैया तो इतने मच्छर के समान दिख रहे हैं। 18 किलोमीटर के विराट शरीर वाली पूतना को भगवान ने आकाश में उसके प्राण लिए, उसके प्राण गए और पूतना का जो शरीर है उसमें से प्राण निकल गए और पूतना पृथ्वी पर आ गई है। ऐसे शरीर झूलता हुआ पृथ्वी पर आ रहा है। भगवान ने सोचा अगर गांव के ऊपर पड़ेगी तो पूरा गांव जमीन में चला जाएगा। भगवान ने उसके शरीर को जंगल में, वन जंगल में गिराया। जिस जंगल पे उसका शरीर पड़ा सब वृक्ष थे वो सब के इधर रासाई हो गए। भगवान मन में सोच रहे चलो अच्छा हुआ, वो तो मरी और उसको मरने के बाद जलाने के लिए काष्ठ भी चाहिए। ये काष्ठ की व्यवस्था भी हो गई, उनका भी काम हो गया। पूतना के प्राण चले गए। पता चला ब्रजवासियों को, दौड़ करके आए ये तो पूतना थी। कन्हैया को ले लिया और समझ गए ये तो पूतना। फिर तो उनके शरीर को काट करके अग्निदाह दिया। भगवान ने पूतना को मार करके भी उसका कल्याण किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। मार करके भी कल्याण करने वाला सारे संसार में एक ही है। तभी तो हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप उसके ऊपर तो करुणा ही करेंगे क्योंकि माता पिता।
भगवान ने जिस जिस दैत्य को, राक्षसों को, दुराचारियों को मारा, बाह्य दृष्टि मारा है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से देखिए तो भगवान ने उसका उद्धार किया है, उसका कर दिया, मार करके भी उसको उतारा। फिर चाहे रावण हो, कंस हो, कोई भी दैत्य हो, भगवान ने पुत्रा का उद्धार किया, उनको अपना धाम दिया। जिसको आपको जिस व्यक्ति में जो देखना है वो मिलेगा। आपको गुण देखना है तो गुण मिलेगा, दोष देखना है तो दोष मिलेगा। आपको क्या देखना है? जो आपके मन में होगा वही आपको दिखेगा। आपको कोई व्यक्ति कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपके मन में उसके तरफ रोष है, आपको अवगुण ही दिखेगा। अगर आपको उसके तरफ प्रेम है तो आपको उसमें गुण ही गुण दिखेंगे। ये तो भगवान है। तो पुत्रा को भगवान ने मोक्ष दिया, जय जयकार हुआ। ये तो परमात्मा है। मार करके भी जो कल्याण करते हैं वही भगवान है, वही ईश्वर है। से भगवान ने पुतना का उद्धार किया। और आगे की कथा हम अगले दिन कल लेंगे। आज समय सावधान कर रहा है, तो आज की कथा को इधर ही विराम दे करके कल की कथा में आगे बढ़ेंगे। 1-2 मिनट के लिए गुण गोविंद